Today, आज I want to tap into Spirit Holy Ghost tool that is so powerful that will literally the anointing will burst into your life. और I'm देखिए serious. आज पवित्र आत्मा पर आधारित वो जरिया या कहें वो साधन आपके सामने पेश करते हैं जो कि सीधे तरह से देखिए अभिषेक को आपके अंदर एकदम फूट कर निकालेगा। This is the secret of many prophets. This is the secret of many men and women of God that are powerfully used in these times and the times gone by. और देखिए ये वह रहस्य हैं जो परमेश्वर के महान जन जो बीते समय में हुआ करते थे उनके जीवन में ये रहस्य काम करता था जो अभी भी जो परमेश्वर के महान सामर्थ्य जन उनके जीवन में भी काम करता है। Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 16 right now. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे मरकुस का 16वां अध्याय इस वक्त And let's read from verse 17 and 18. और आइए पढ़ेंगे उसके 17वें और 18वें You वचन। see, after his resurrection from the dead, और देखिए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में से जुटने के बाद Lord Jesus declared something very powerful. प्रभु यीशु मसीह ने कुछ जबरदस्त बातें घोषित की है। So let's read verse 17. And these signs will follow those who believe in him. जो लोग उसमें विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे, In my name, मेरे नाम में they will cast out demons. वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, They will speak with new tongues. वे नई नई भाषा बोलेंगे। Verse 18, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will be by no means hurt them. और आगे वचन में लिखा है वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे कोई प्राण नाशक यानी जहरीली वस्तु पी भी जाए तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी। They will lay hands on the sick, and they will recover. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 5 things God spoke over here. देखिए 5 चीजें हैं जो परमेश्वर ने यहाँ पे बताया। The first one, पहला है they will cast out demons. वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, That is spiritual authority. ये है आत्मिक अधिकार। The second thing, दूसरी they चीज will speak with new tongues. वे नई भाषा बोलेंगे, Supernatural language. अलौकिक भाषा। Third, तीसरा they will take up serpents. वे सांपों को उठा लेंगे, Speaks about supernatural protection. ये बात करती है अलौकिक सुरक्षा के बारे में। Fourth, चौथा if they drink anything deadly, it will not hurt them. Speaks about supernatural preservation. और चौथा यह है कि अगर वे कुछ भी प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, अलौकिक तौर पे बचाया जाना। They will lay hands on the sick and they will be healed. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, Supernatural power. अलौकिक सामर्थ्य। You see 5 signs or 5 things that the Lord Jesus spoke about a person who believes. और देखिए 5 चीजें या 5 खास बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के बारे में बताए जो विश्वास करता है। Today I want to talk to you about this gift of tongues. देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं ये जो वरदान जो अन्य भाषा बोलने वाला वरदान About है, this supernatural language. ये अलौकिक भाषा के बारे में। You see, when we are born into this world, और आप देखते हैं जब इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं we all have a mother tongue. हम सबके पास हमारी मातृभाषा होती है। Come on. You know, whichever form you go out to fill, and they will tell you what is your mother tongue. और देखिए जो भी आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है उसमें देखिए इस बात को वो पूछते हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। But when you are born again, लेकिन जब आप नया जन्म पाते हैं God gives you another tongue. परमेश्वर आपको और एक भाषा देता It's है। not a mother tongue now, it's the father tongue. ये अब मातृभाषा नहीं हो जाती, ये पिता की भाषा बन Come on, जाती it's a father's tongue. है। देखिए ये Hallelujah. पिता की भाषा हो With जाती है। that tongue, you can communicate with your heavenly Father. उस भाषा के जरिए आप अपने स्वर्गीय पिता से वार्तालाप कर सकते हैं। It is a supernatural language. ये अलौकिक भाषा है। Somebody shout hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए You know, हालेलुया। when you want to grow in love, when you want to grow in understanding in any relationship, you need to communicate with that person. देखिए जब आप किसी प्रेम में बढ़ना चाहते हैं या किसी के साथ समझदारी में बढ़ना चाहते हैं तो जरूरी पड़ता है कि आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करें। If you want to grow your business, you need to have your communication channels very clear. और देखिए अगर आप चाहते हैं कि किसी भी व्यवसाय में आपकी बढ़ोतरी हो तो जरूरी है कि आपका वार्तालाप का जरिया जो है एकदम स्पष्ट होना चाहिए। If you are failing in your communication, अगर आप उनसे संपर्क साधने या वार्तालाप करने में नाकाम होते it's हैं a big red flag. You need to address that issue immediately. और देखिए बड़ा लाल झंडा खड़ा होता है कि आपको उस मामले को तुरंत ही सामने पेश करना चाहिए। In the same way, उसी तरीके से when we communicate with the Father, when we communicate with the Lord using this language of the Spirit, उसी तरीके से जब हम पिता के साथ वार्तालाप करते हैं, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ इस भाषा का इस्तेमाल करके वार्तालाप करते हैं, it's a pure language. और ये एक बहुत ही शुद्ध भाषा है। It's a spirit to spirit language. ये सीधे आत्मा से आत्मा की वार्तालाप होने वाली भाषा है। You tap into what all God is. You tap into what all that God is saying to you. और देखिए जो कुछ भी परमेश्वर है और जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहा है उन सब पे आप कदम रख देते हैं। Hallelujah. Ole, hallelujah. If you turn your Bibles with me to the book of 1 Corinthians 14 and verse 2, let's see what it says. अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका दूसरे वचन में, चलिए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। It says, वचन कहता है who speaks in this heavenly language, in this tongue, does not speak to men, but to
not directly, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. क्योंकि जो अन्य भाषाएं बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। It's a pure language. आप देख सकते हैं कि ये परमेश्वर द्वारा दिया हुआ एकदम शुद्ध भाषा है। It's spirit to spirit ये communication. सीधे आत्मा से आत्मा की वार्तालाप होती है। This is one way you can tap into the anointing. और देखिए ये खास तरीका है जिसके जरिए आप अभिषेक में कदम रख सकते हैं। So you need to use this gift very, very regularly. तो देखिए आपको इस वरदान जो है इसका इस्तेमाल हमेशा नियमित तौर पे करना चाहिए। There are many people देखिए बहुत सारे लोग हैं that have buried this gift, जिन्होंने इस वरदान को गाड़ दिया है, that have been felt condemned by what people have been speaking about it. और देखिए लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो सोचकर वे अपने ऊपर एकदम ग्लानि महसूस करते हैं। You know, there are people who don't even have this gift and they talk about this gift, they talk against this gift. और देखिए ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वरदान बिल्कुल भी नहीं है और वे लोग इस वरदान के खिलाफ में बोलते हैं। It's like a person does not have a car, doesn't know to drive, and he's talking about driving. और देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है ही नहीं, जिसको कार चलाना आता ही नहीं है और वो सिखा रहा है कार चलाने के बारे में। If a person doesn't have something, how can he talk about it or she can talk about it? अगर एक व्यक्ति जिसके पास वो चीज है ही नहीं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, तो कैसे वो लोग इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं? Don't let anybody condemn you regarding the gift of speaking in tongues. लेकिन किसी को भी आप पर ये अन्य भाषा बोलने के वरदान के बारे में आरोप लगाने मत दीजिए। It is not given by any man. ये किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया So जाता, we have no right to speak against it. तो हमारे पास कोई हक और अधिकार नहीं है इनके खिलाफ में बात It करने is का। from the Lord. ये सीधे प्रभु से आता It is a grace gift. है। ये अनुग्रह के द्वारा दिया So हुआ let वरदान us है। receive by grace. तो चलिए अनुग्रह के द्वारा ग्रहण करेंगे। You know, if you read 1 Corinthians chapter 12, देखिए अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां and अध्याय, if you read verse 7, अगर आप वहां पढ़ेंगे 7वें it वचन, says the manifestation of the Spirit is given to each one. Why? For the profit of everyone. It's not for us, it's for everyone. देखिए वहां पर ऐसा लिखा है कि आत्मा का प्रकाश हर एक को दिया जाता है, क्यों? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। And verse 10 says, 10वां वचन कहता to है another different kinds of tongues. किसी को अन्य अलग अलग भाषा बोलने की सामर्थ्य। You know, Bible scholars say there are 6 types of tongues. तो देखिए बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ऐसे 6 प्रकार की या अन्य भाषा की बोली है। The first one, पहला है the tongues of men. ये है मनुष्य की जुबानी या बोली, What we're speaking right now. जो अभी हम बोल रहे हैं। I'm speaking in English, Pastor Ravi is speaking in Hindi. पास जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। The second one is tongues of angels. और दूसरी जो है वो है स्वर्गदूतों की भाषा। Now, I don't want to go into everything about this. It's in my book. You can find it, okay? और देखिए इस पर इन सारी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, पास जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप Tongues उस पर of करेंगे। worship, अगला जो आता है वो है आराधना की भाषा, unknown tongues, या चौथी बात जो है अनजान भाषा, gift of tongues, अन्य भाषा बोलने का वरदान, and prophetic tongues. और भविष्यवाणी की भाषा। You see, there was a great man called John G. Lake. देखिए परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन जी लेक जी। This man ये व्यक्ति spent 9 months seeking the Lord. देखिए उन्होंने 9 महीने बिता दिए प्रभु की खोज में, And when he would minister, और जब वे सेवकाई करते हैं day and night he sought the Lord. दिन और रात में प्रभु की खोज में लगे रहते They थे। would lay hands on people with tumors and growths. They would just melt. और जब वे ऐसे लोगों पर हाथ रखते थे जिनके शरीर में गांठें हैं या वृद्धि है, वे गांठें वे वृद्धि यूं ही खुद ब खुद गायब हो जाती थी, निकल जाती थी। The mayor of Spokane, Spokane, that's the place where he lived. Apparently, they declared that that town was the healthiest town because of John G. Lake's ministry. और देखिए स्पोकन नामक का जो प्रांत है अमेरिका में, देखिए वहां के मेयर ने इस प्रकार से कहा था, जहां पर जॉन जी लेक जी कहते थे कि वो प्रांत जो है जॉन जी लेक जी की वजह से एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त प्रांत था। When there was a plague in that place, जब उस जगह में महामारी फैली, they put something on his hand and he put it under the microscope. They would see that those things are dying. Wow. और देखिए ऐसा हुआ था It's कि actual documented stuff. और ये लिखी हुई बातें हैं कि जब ऐसा वहां पे महामारी फैल गई थी तो वहां के उन्होंने ऐसा किया कि महामारी के जो वो विषाणु जीव जंतु जो होते थे, कीटाणु जंतु जो होते थे, वे लेकर जॉन जी लेक जी के हाथों में रखे और फिर जब वो माइक्रोस्कोप के नीचे लेके गए तो वो दिखाई पड़ता था कि वो जंतु जो है यूं ही मर जाते थे, और इस तरह से काम हो रहा था। Amazing man of God. परमेश्वर के बड़े अद्भुत जन। I read his biography. और देखिए उन्होंने लेख को पढ़े, And here's what it और says. देखिए उन्होंने क्या कहा। Tongues have been the making of my ministry. Tongues will be the making
of your life. और ये अन्य भाषा बोलना जो है यही मेरी सेवकाई को बनाने का रहस्य है, और ये अन्य भाषा बोलना ही ये तुम्हारे जीवन का भी रहस्य है। This is how one of the ways you tap into the anointing of the Spirit of God. और देखिए आप देख सकते हैं कि एक खास तरीका है जिसके जरिए आप परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में कदम रख सकते हैं। I want to discuss a little about this that will whet your appetite for more of God. और देखिए आज इस पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जिसकी वजह से परमेश्वर के विषय में आपके अंदर जो भूख है और ज्यादा ये बढ़ने Now, लगेगी। I can't discuss everything about it इन because, सारी बातों पर चर्चा तो नहीं कर सकते, but I will share with you some key things. लेकिन कुछ मुख्य जो चीजें जो है उस पर जरूर हम आपके सामने। Go with me to 1 Corinthians 14:4, चलिए निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय 4था वचन, and I'm reading from the Amplified Version. और पढ़ेंगे इस वक्त जो एम्प्लीफाइड का संस्करण उसके जरिए। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है। He who speaks in a tongue edifies and improves himself. और जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति और अपना सुधार करता है। Two things over there. दो चीजें The हैं। first one, पहला है edifies himself, अपनी उन्नति करता है, and second it says, और दूसरा ये कहता है improves himself. अपने आप को सुधारता है। When you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, two things, you edify yourself. दो चीजें होती हैं कि आप अपनी उन्नति करते हैं, Now what does that mean? और इसका मतलब क्या That word edify in the Greek is to put a brick upon brick, a brick upon brick. और देखिए ये शब्द जो आया है उन्नति करना, यूनानी भाषा में इसका इस तरह से अर्थ है कि एक ईंट पर दूसरा ईंट, ईंट पर ईंट रखते जाना। That is a construction term that is used in the Greek. और देखिए यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया जाने वाला यही संदर्भ है जिसे मरम्मत किया जाना होता है। Now I don't want you to frighten you with the Greek, so just remember this. It's like says one brick upon brick, brick upon brick. That's what it means. The word edify in the Greek. Okay. और देखिए आपको यूनानी भाषा के जरिए चकित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखते जाना यही कहलाता है, ये इस उन्नति का शब्द And का अर्थ। a big wall is built. और फिर एक बड़ी दीवार बना दी जाती A है, big place is built where that place can house the anointing, that can contain the anointing. और देखिए इसके बाद जैसे कि कहें एक बहुत बड़ी जगह बना दी जाती है, वो जगह जो है अभिषेक की मेजबानी कर सकती है, अभिषेक को थामे रख सकती है। People of God, परमेश्वर के you लोगों, need something to hold that anointing in the realm of the Spirit. और देखिए हमारे पास वो ऐसी चीज की जरूरत है जो आत्मा के आयाम में अभिषेक को थामे रख सके। And as you speak in tongues, और जैसे अपन ने भाषा में बोलते हैं, you are that container. आप वो पात्र बन जाते It becomes better and better. हैं और ये और भी बेहतरीन और श्रेष्ठ होता जाता See है। what it says, improves himself or herself. और देखिए अगला जो शब्द जो कहता है एम्प्लीफाइड संस्करण, वो ये है कि अपने आप को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अपने आप को सुधारते हैं। So you may be having certain weaknesses which many people are not aware of. देखिए तो शायद हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी कमजोरियां हो और बहुत सारे लोग Yes. इन बातों से वाकिफ नहीं होते। You cannot share this with anybody. आप किसी और से इसे बांट नहीं सकते। How do you deal with those things? कैसे आप उन चीजों से निपट You सकते हैं? begin to pray in tongues. आप अन्य भाषा बोलना शुरू करें, And as you do that, और जैसे आप ये करते हैं, internally things change because now you are communicating spirit to spirit and something inside you begins to change. और फिर इसके बाद अंदरूनी तौर पर आपके अंदर चीजें जो है बदलती चली जाती हैं, क्योंकि अभी आप आत्मा से आत्मा के वार्तालाप और बातचीत कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ तो ऐसी चीजें आपके अंदर बदलती चली जाती हैं। One man of God said it jokingly. He said that is God's self-improvement program, speaking in tongues. और देखिए किसी ने परमेश्वर किसी जन ने मजाक के तौर पे ऐसे कह दिया कि ये परमेश्वर के द्वारा स्वयं को सुधारने का प्रक्रिया है। There are internal limitations in our lives. देखिए हमारे जिंदगियों में अंदरूनी तौर पे ऐसी कुछ सीमाएं होती हैं, Do whatever you want. You don't seem to change. और देखिए आप कितनी भी कोशिश कर ले, जो कुछ आप कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन आपको बदलावट दिखाई नहीं देता। Start speaking in tongues. आपसे कहना चाहते हैं अन्य भाषा बोलना शुरू There are करें। Christians, they never speak in tongues. देखिए ऐसे मसीह लोग होते हैं जो कभी अन्य भाषा नहीं Now, बोलते। I'm not against that. Nothing against wrong. Nothing इसके is wrong. खिलाफ में हम नहीं है, हम इसके खिलाफ में कुछ भी There's नहीं some बोलते। very good people out there. और कुछ बहुत ही अच्छे लोग But हैं, there are many of you. लेकिन बहुत सारे लोग हैं। God has given you the gift of tongues. You desire the gift of tongues. I'm speaking to such people. और देखिए आप लालसा करते हैं अन्य भाषा बोलने की, आप तमन्ना रखते हैं अन्य भाषा में बोलने की, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं। As you speak, जैसे आप बोलते हैं, there'll be improvements in you. आपके अंदर देखिए सुधार होता चला जाएगा। There will be inner healing happening inside of you. और देखिए आपके अंदर भीतरी अंदरूनी चंगाइयां होने लगेंगी। This is what the scripture means by improves himself. और देखिए वचन को कहने का यही मतलब है, अपने आप में सुधार लाता है। Please understand, you are a container. समझने की कोशिश करें कि आप एक पात्र हैं। Paul writes, he says, my body is a temple of the Holy Spirit. One translation says the residence of the Holy Spirit. प्रेरित पौलुस ऐसा लिखते हैं कि मेरा शरीर, हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरा एक संस्करण ऐसा कहता है कि हमारा शरीर जो है परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए निवास स्थान है। So begin to speak in tongues
and you will tap into the anointing of the Holy Spirit. तो शुरू करें अन्य भाषा बोलना और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में कदम रख लेंगे। At the start, you may feel, what am I saying? और देखिए शुरू में शायद आपको ऐसा महसूस हो कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। Yes, now you don't copy somebody. देखिए आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आप किसी और की नकल ना करें, You receive it from the Lord. आप सीधे प्रभु से ग्रहण करें। Just wait upon God and say, Lord, give me this gift of tongue. And the Holy Spirit comes upon you, start speaking. It's an unknown tongue. It's a prayer language. और देखिए प्रभु की बाट जोते रहें और जैसे पवित्र आत्मा आपको यह भाषा देता है, आपको समझने की कोशिश करना है कि यह प्रार्थना की भाषा है या अन्य भाषा, अनजान भाषा है। You know, many people, they write to me and says, I don't know what I'm speaking. देखिए बहुत सारे लिखकर ऐसा कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा I've seen many mothers, हूँ। और पासवान जी ने बहुत सारी माओं को देखे हैं and the baby makes some sounds. और देखिए बच्चा जो छोटा बच्चा जो है कुछ आवाज करते हैं And the mother looks at the baby और माँ जो उस बच्चे की ओर देखती है and says, oh, you're feeling hungry. और कहती है अरे तुम्हें भूख लगी And है। I'm like, how did you know that? और हम सोचते हैं कि अरे इनको कैसे पता चल गया। And often my wife would say, like, you know, you don't understand. और अक्सर पासवान अनीता जी कहती है और तुम्हें समझ में नहीं आता ये। And suddenly the baby would make some sounds. फिर अचानक बच्चा कुछ और आवाज Oh, करेगा। your stomach is paining. ओ तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। I was wondering how these people understand. पासवान जी हैरानी बढ़कर सोचते हैं ये लोग कैसे The समझ। mother is so connected to the baby. माँ जो है अपने बच्चे से इतनी जुड़ी हुई है How much more God is connected तो to कितना us. ज्यादा परमेश्वर हमसे जुड़ा है। Even our sighs and our groanings are a language. और देखिए कराहना जो है ये भी एक प्रकार की भाषा ही है। That's the tongue that God releases. ये वो भाषा है जो परमेश्वर मुक्त करता है। Sometimes कभी-कभी when you don't have words to speak, जब आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते, God opens up a new language. परमेश्वर एक नई भाषा आपके लिए खोलता है। That's the way you tap into the anointing of the Lord. यही तरीका है परमेश्वर के अभिषेक में आप कदम रख देते Do हैं। it for a week एक हफ्ता करके देखें and you will see different things happening. और आप पाएंगे अलग-अलग चीजों को होते हुए। I want to share something. आपसे कुछ बांटना चाहते हैं। Many years back, I understood the secret after listening to many great men of God. देखिए कई साल पहले कहना चाहते हैं कि परमेश्वर कई सारे महान जनों के सुनकर पासवान जी ने इस रहस्य को सीखे हैं। There is a great man of God called Dave Robertson. परमेश्वर के महान जन जो अभी भी हैं उनका नाम है डेव रॉबर्टसन जी। There's another great man of God called Prophet Ezekiah Francis. परमेश्वर के और एक महान जन है भविष्यवक्ता एजेकिया फ्रांसिस जी। There are many great men of God in India. ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे महान जन इस भारत देश में हैं। I met many prophets of God परमेश्वर के कई सारे who भविष्यवक्ताओं से spend बात की। hours speaking in tongues. जो घंटों बिताते हैं अन्य भाषा बोलने में। That is the foundation of their ministry. ये उनकी सेवकाई की बुनियाद रही है। I'll give another example और एक उदाहरण देते from हैं scripture, of course. वचन में से। You see, what was the first gift that God gave the apostles? आप बताइए कि प्रेरितों को पहला वो वरदान कौन सा था जो परमेश्वर ने उनको The दिया? first gift that was manifested was the gift of tongues. देखिए सबसे पहला वरदान जो उनके लिए मुक्त हुआ वो था अन्य भाषा का वरदान। That is the foundation for all other gifts. यही तो बाकी सभी वरदानों के लिए मुख्य बुनियाद थी। You know, when you start speaking in tongues, देखिए जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू you करते हैं, stir up every other gift. आप दूसरे सभी वरदानों को उत्तेजित करते हैं। This gift seems very insignificant. और देखिए ये वरदान जो है बहुत ही एकदम मामूली सी दिखाई पड़ती है। And that's why the devil speaks so much against it. और इसी वजह से शैतान इसके खिलाफ में बहुत कुछ बोलता है। But let me tell you from experience. लेकिन अनुभव के द्वारा How आपको does बता दीजिए how does prophecy flow? कैसे भविष्यवाणियां निकल कर आती हैं, How does the word of knowledge flow? कैसे ज्ञान का वचन बहने लगता है, How does healing flow? कैसे चंगाइयां होने It's लगती through हैं, the gift of tongues. अन्य भाषा बोलने के वरदान कैसे। Let me tell you, as a person who flows in these things, this is how you do it. और बताने दीजिए एक व्यक्ति के रूप में जिसमें बहता है यही तरीका आपको करने का। You don't flow in the gift of the word of knowledge. How can you talk about it? अगर देखिए आप ज्ञान के वचन में काम नहीं करते हैं तो कैसे आप इसके बारे में ऐसे खिलाफ में बोल सकते You हैं? never studied mathematics. How can you teach mathematics? अगर आपने गणित का कभी अध्ययन ही नहीं किया, कभी पढ़ाई नहीं की, तो आप दूसरों को गणित की शिक्षा Oh, कैसे दे mathematics सकते is bad. Mathematics is hello. हैं? ओ गणित की शिक्षा बहुत बुरी है, गणित बहुत खराब है, पहले पास तो हो जा. मेरे पास हो जाइए। So don't listen to this one and that one. You see it for yourself. The Lord says, taste and see. The Lord is good. तो Hallelujah. आप इसकी उसकी मत सुनिए, आप खुद अनुभव करके देखिए। प्रभु कहता है चख कर देखो प्रभु भला है। Don't let the devil steal this gift from you. शैतान को यह वरदान आपसे चुराने मत दीजिए। You know, when you speak in tongues, लेकिन जब आप अन्य भाषा बोलते हैं there's something that happens in your spirit. कुछ तो आपकी आत्मा में होने Go लगता to Isaiah 28 verses 11 and 12. है। चलिए निकालेंगे यशायाह का 28वां अध्याय उसके 11-12 वचन में। God spoke about this. You see, prophet Isaiah was an amazing man of God. और देखिए परमेश्वर ने इस बारे में बताए थे और भविष्यवक्ता यशायाह बड़े ही अद्भुत थे। See what it says. देखिए वचन में क्या For with stammering lips and another tongue, he will speak to this people.
और देखिए वह तो इन लोगों से हकलाने वाले होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। To whom he said, "This is the rest with which you may cause the weary to rest, and this is the refreshing." जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। You know, when you speak in tongues, देखिए जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, there'll be no room for the spirit of depression in your life. तनाव के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं रह जाती। You will have rest in your spirit, rest in your mind. देखिए आपकी आत्मा में चैन रहेगा, आपके मन, आपके दिलो दिमाग में आपको चैन This मिलेगा। refreshing is not only bodily refreshment, but there'll be a new refreshing anointing flowing in your life. This is how you tap into the anointing. Are you receiving right now? और देखिए ये ताजगी जो है, ये सिर्फ शारीरिक तौर पर मिलने वाली ताजगी ही नहीं, लेकिन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में देखिए आपको ताजगी मिलेगी। क्या आप इसमें कदम रखने के लिए तैयार हैं अभी? There are many people who want to grow, and I'm not talking to people who are saying, "Okay, let me just live life the way it is. Hallelujah." I'm not talking to such people. I'm talking to those people who are really hungry for God. If you are hungry like me, you must say, "Lord, give me this grace." ये उन लोगों से नहीं कह रहे हैं जो बस कहते हैं कि चलो जिंदगी चलने दो जैसी भी चल रही है, हालेलुया। नहीं 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 नहीं, अगर आप लोग परमेश्वर की चीजों के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आपसे हम कहना चाहते हैं, चलिए इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, तैयार हो जाएं। You know, देखिए many times बहुत बार there is hardly anything I write on myself. बहुत ही कम रहता है कि पासवान जी कुछ संदेश Just 2 or 3 points, बस 2-3 मुद्दे ही होते and I हैं will come और आएंगे on the pulpit. और अक्सर पुलपिट पर Pastor will ask me, पासवान मैं पूछूंगा "So, what is the message, तो Pastor?" संदेश क्या है? And I will tell him, "It's coming." पासवान जी कहते हैं बस आ रहा And है। he knows that there's nothing. He has seen it. Pastor तो Ravi. मैंने देखा है कि कुछ रहता नहीं है ऐसा। And when I open my mouth, और जब पासवान जी अपना मुंह खोलते हैं it's as if it's pouring. It's just flowing. और ये ऐसा होता है जैसे कि बहने लग जाता Now- है, उड़ेला जा रहा है। Now I'm sharing this with you not to show off. I'm sharing this with you to show you when you speak in tongues, what happens is God is downloading mysteries. God is downloading things in your spirit. And when you open your mouth, bang, people will be like, "Whoa, where did this guy get it from?" और देखिए ये बताने के लिए नहीं, दिखावा के लिए नहीं कह रहे, लेकिन इसलिए Yes. कह रहे हैं कि जब पासवान जी देखिए अन्य भाषा में प्रार्थना करके फिर जब आकर अपना मुंह खोलते हैं तो देखिए आत्मा के जरिए इनकी आत्मा में डाउनलोड होने लग जाता है और इनके मुंह से वचन जो है यूं ही बहने लग जाते हैं और फिर लोग चौंक कर कहते हैं, अरे ये सब ये बातें इनको कहां से मिल गई? If you're a businessman, अगर आप कोई व्यवसायी you हैं, need to speak in tongues. आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत है, Because you see, you will get different ideas. क्योंकि आप देखते हैं आपको अलग अलग ऐसी तरकीबें और योजनाएं मिलेंगी। The devil will try to block you one way. God will open up 3 doors. शैतान Hallelujah. एक और से देखिए आपको रोकने की कोशिश Amazing. करेगा, परमेश्वर 3 और दरवाजे आपके लिए खोल देगा। I'm telling you the कहते हैं right आपसे। word at the right time. सही शब्द सही समय पर आएगा। This is how you tap into the anointing. इसी तरीके से आप अभिषेक में कदम रखते हैं। I know one man of God. He said, "Michael, उन्होंने इनको सिखाया, उन्होंने कहा माइकल when you read the Bible, जब तुम बाइबल पढ़ते हो you want understanding. तुम्हें समझ में नहीं आता, Read the passage and speak in tongues." उस आयत को पढ़े, उस पद को पढ़े, अन्य भाषा बोलो। And I do that. तो पासवान जी ऐसा करते हैं। I'm समझने just की like कोशिश- you. बिल्कुल आप ही कैसे हैं हम? In fact, some of you are better than me. और कम से कम दरअसल बताया जाए तो आप में से कुछ लोग हमसे बेहतर हैं। But it's for God's, it's nothing but God's grace. बताना चाहते हैं आपको कि परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा कुछ नहीं है। You can do it. आप कर सकते हैं। God has given us this beautiful gift of speaking in tongues. परमेश्वर ने देखिए ये वरदान, ये अन्य भाषा बोलने का खूबसूरत सा वरदान दे रखा है। Somebody say, "I receive this." कोई तो कहे मैं इसे ग्रहण करता हूं। People of God, परमेश्वर के लोग don't neglect this gift. इस वरदान को नजरअंदाज न करें। Paul wrote to Timothy, says, "Don't neglect the gift that was given to you by the laying on of hands." पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि वे वरदान जो हाथ रखने के द्वारा तुमको मिला है उसे नजरअंदाज मत करो, उसे ठुकराओ मत। Many Christians are not praying in the gift of tongues. बहुत सारे मसीह लोग जो अन्य भाषा में है, इसमें प्रार्थना ही नहीं करते। Before coming and sitting on this table, I pray in tongues. आकर इस मंच पर बैठने से पहले पासवान जी अन्य भाषा में प्रार्थना करते Some हैं। of you, as you speak in tongues, God will give you new songs. और देखिए आप में से कुछ लोग जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको नए नए गाने देगा। Your lifestyle will change. आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। Okay, let me show you one of my favorite verses. चलिए आपको दिखाने दीजिए पासवान जी का एक मनपसंद वचन। Go to Jude 20. चलिए निकालेंगे यहूदा की पत्री में उसका 20वां वचन। There's only one chapter. देखिए एक ही अध्याय है Verse, directly go to verse 20 now. और सीधे हम जाएंगे उसके 20वां And वचन I'm reading from the Amplified. और पढ़ रहे हैं इस समय एम्प्लीफाइड संस्करण में। "But you, beloved, और हे प्रियो, building yourselves up, founded on your most holy faith, अपने सबसे पवित्र विश्वास पर खुद को स्थापित करते हुए you will make progress." तुम प्रगति करोगे। Second, दूसरा, rise up like an edifice, that is a building or a monument, higher and higher and higher. एक उच्च स्तर और ऊंचे स्तर के भवन यानी इमारत के जैसा और ज्यादा ऊंचा ऊंचा उठते जाओगे। How? कैसे? Bring in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। So,
The first one, तो पहला है making progress. प्रगति करना। How do you make progress? कैसे आप प्रगति करते हैं? Spiritually, आत्मिक तौर पे, financially, आर्थिक तौर पे, praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करने के I जरिए। don't say it. हम नहीं कह You रहे। have a problem, go to the word. अगर Who wrote आपको it? कोई दिक्कत है तो वचन में जाए, जाके प्रभु से पूछिए। Yeah. Oh, how did he say that? तो कैसे उन्होंने ये बोल दिया? I'm not saying that. हम नहीं कह रहे। The word says that. वचन कहता है। The second thing it says, rising like an edifice higher and higher. So the moment you start speaking in tongues, you're making progress, point number one, and something is built in the spirit, and that monument in the spirit is growing higher, 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 higher. और देखिए, Yeah. सबसे पहले जब अन्य भाषा बातें करना शुरू करते हैं, अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप प्रगति करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक इमारत, एक भवन के जैसा आप ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठते चले जाते हैं। And in 3 months, और अगले 3 महीनों you में will find you are making amazing progress in the realm of the spirit. आप पाएंगे कि आत्मा के आयाम में आपने अद्भुत प्रगति कर लिया है। Your ministry will grow. आपकी सेवकाई बढ़ेगी, Your impact will be more. आपका प्रभाव और ज्यादा People बढ़ेगा। say, what happened? लोग पूछेंगे क्या हो It गया? is praying in the gift of tongues. You're tapping into the realm of the spirit. तो आप कह सकते हैं कि ये आत्मा के आयाम में कदम रखने के जरिए अन्य भाषा बोलने के द्वारा हुआ है। Somebody raise your hands and say, I received this gift.